روزانہ رات کے اندھیرے میں شوہر کا غائب ہونا اور فجر پر مٹی بھرے جوتوں کے ساتھ لوٹنا مجھے کھٹکتا تھا۔ میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ ویران قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان کا خوفناک سناٹا میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے ایک درخت کی اوٹ سے جھانکا۔ وہ دیوانہ وار مٹی ہٹا رہے تھے جیسے ان پر کوئی جنون طاری ہو۔ وہاں وہ ایک تازہ قبر کھودنے میں مگن تھے، مگر جب میں نے دیکھا کہ وہ قبر کس کی ہے، میری چیخ نکل گئی، کیونکہ دسمبر کی یخ بستہ اور طویل رات کا سناٹا میرے وجود میں ساریت کر رہا تھا، اور کمرے میں پھیلی ہوئی گہری تاریکی نے ماحول کو مزید بوجھل بنا دیا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی کسی ہتھوڑے کی مانند میرے اعصاب پر برس رہی تھی، اور میں بستر پر لیٹی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میرے برابر میں لیٹا ہوا میرا شوہر باسط بظاہر گہری نیند میں تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ نیند نہیں بلکہ جاگتے ہوئے سونے کا ایک ڈھونگ ہے جو وہ پچھلے کئی روز سے رچا رہا تھا۔ ہمارے تعلقات میں آنے والی سرد مہری موسم کی خنکی سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ باسط وہ انسان ہرگز نہیں رہا تھا جسے میں نے 10 سال پہلے اپنا جیون ساتھی چنا تھا۔ ہماری شادی محبت کی شادی تھی، اور ان 10 سالوں میں ہم نے زندگی کے ہر نشیب و فراز کا سامنا مسکراتے ہوئے کیا تھا، مگر پچھلے ایک ہفتے سے زندگی کی یہ گاڑی جیسے پٹڑی سے اتر گئی تھی۔ اس کے رویے میں ایک ایسی نامعلوم اور عجیب تبدیلی آ گئی تھی جس کی کوئی بھی منطقی وجہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ باسط جو گھر میں داخل ہوتی ہی اپنی بلند آواز اور قہقہوں سے گھر کے در و دیوار کو روشن کر دیتا تھا، اب ایک زندہ لاش کی مانند خاموش اور گمسم ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو کبھی شرارت اور محبت کی چمک ہوا کرتی تھی، اب وہاں ایک گہرا خالی پن اور ویرانی ڈیرے ڈال چکی تھی، جیسے وہ کسی ایسی دنیا کا باسی ہو گیا ہو جہاں جذبات کا گزر ممکن نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات اس کے جسم کی وہ غیر معمولی ٹھنڈک تھی جو مجھے اس کے قریب جانے سے بھی خوف زدہ کر دیتی تھی۔ جب بھی میرا ہاتھ غلطی سے اس کے ہاتھ یا بازو سے مس ہو جاتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے میں نے کسی برف کے تودے کو چھو لیا ہو۔ انسانی جسم میں ایک قدرتی حرارت ہوتی ہے، مگر اس کے جسم سے وہ حرارت جیسے مکمل طور پر رخصت ہو چکی تھی۔ اس کی جلد کی رنگت بھی دن بدن زرد پڑتی جا رہی تھی، جیسے اس کے جسم میں خون کی گردش رک گئی ہو یا خون سفید ہو چکا ہو۔ میں نے کئی بار اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے کوئی کاروباری پریشانی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، مگر وہ ہر بار میری بات کو ٹال دیتا یا پھر بنا کوئی جواب دیے کروٹ بدل کر لیٹ جاتا۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی، مگر میرا شک اس وقت یقین کی صورت اختیار کرنے لگا جب میں نے اس کی رات کی سرگرمیوں پر غور کرنا شروع کیا۔ میں عموماً گہری نیند سونے کی عادی تھی، مگر اس کی بدلی ہوئی عادات اور پریشانی نے میری نیندیں اڑا دی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ روزانہ رات کو میرے سونے کے بعد چپکے سے بستر سے اٹھتا ہے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اتنی خاموشی سے یہ عمل کرتا تھا کہ اگر میں جاگ نہ رہی ہوتی تو مجھے کبھی اس بات کا علم نہ ہو پاتا۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید اسے نیند نہیں آتی اور وہ پانی پینے یا ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے باہر جاتا ہے، مگر جب یہ معمول بن گیا تو میں نے اگلی صبح اس کے جوتوں کا معائنہ کیا۔ جو چیز مجھے نظر آئی اس نے میرے ذہن میں شکوک و شبہات کے انبار لگا دیے۔ اس کے جوتوں پر ہمیشہ ایک خاص قسم کی گیلی اور لیس دار سرخ مٹی لگی ہوتی تھی۔ یہ بات انتہائی حیران کن تھی کیونکہ ہمارا گھر شہر کے جس علاقے میں تھا وہاں
की मट्टी रेतली और भूरी थी और शहर में दूर दूर तक ऐसी गहरी सुर्ख मट्टी का नाम व निशान नहीं था सिवाय एक जगह के। और वो जगह शहर का कदीम और वीरान कब्रिस्तान था, तो शहर के हदूद से बाहर वाक़या था और जहाँ अब नए मुर्दों को दफनाने की ममानत थी। ये मट्टी सिर्फ उसी इलाके की खासियत थी। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि बासित इतनी रात गए उस वीरान और खौफनाक जगह पर क्यों जाएगा। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। कभी मुझे लगता कि शायद वो किसी मुसीबत में फंस गया है, कभी ख्याल आता कि शायद वो किसी गलत काम में मुलव्वस हो गया है, और कभी तो मेरा शक इस हद तक बढ़ जाता कि मुझे लगता कि शायद उसका किसी और औरत से ताल्लुक है, वो उससे मिलने जाता है। मगर कब्रिस्तान वाली बात इस शक को रद्द कर देती थी। आज रात मैंने तहिया कर लिया था कि मैं इस राज की तह तक पहुंच कर रहूंगी और देखूंगी कि आखिर बासित रात के इस पहर कहाँ जाता है और क्या करता है। मैंने अपनी सांसें रोके रखी और आंखें बंद करके सोने का नाटक करती रही। मेरे कानों में सिर्फ ने दिल की धड़कन की आवाज गूंज रही थी, जो किसी नकारे की तरह बज रही थी। कुछ ही देर बाद मुझे बिस्तर पर हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। बासित आहिस्ता से उठा, उसने एक लम्हे के लिए वक़्फ़ किया और मेरी तरफ झुक कर देखा, ये जांचने के लिए कि मैं जाग तो नहीं रही। मैंने अपनी पलकें साकित रखी, सांसों की रफ्तार को एक सोए हुए इंसान की तरह मुनज़्ज़म रखा। वो मुतमईन हो गया। उसने आहिस्तगी से अपनी चप्पल पहनी और दबे पांव चलता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के कब्जे शायद उसने पहले ही तेल देकर दुरुस्त कर लिए थे, क्योंकि दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आई। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, मैं फौरन बिस्तर से उठी और गर्म शाल अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट ली ताकि सर्दी से बच सकूं। मैंने नंगे पांव चलने को तरजीह दी ताकि मेरे कदमों की चाप उसे होशियार न कर दे। मैं तेजी से मगर एहतियात के साथ उसके पीछे लपकी। जब मैं घर के बैरूनी दरवाजे पर पहुंची, वो गली के मोड़ पर गायब हो रहा था। बाहर शदीद धुंध का राज था, इसने पूरे शहर को अपनी सफेद चादर में लपेट रखा था। हद निगाह इतनी कम थी और सड़कें सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम पीली रोशनी धुंध में घुलकर एक अजीब सा पुरइसरार हाला बना रही थी। बासित पैदल ही जा रहा था और उसकी चाल में एक अजीब सी उछलत और तेजी थी, जैसे उसे किसी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी हो। मैं उससे एक मुनासिब फासला रख कर चलती रही ताकि धुंध के बावजूद वो मुझे देख न ले। शहर की आबाद गलियों से गुजरता हुआ वीराने की तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर कदम पर एक अनजाना खौफ मेरी रगों में सराहियत करता जा रहा था। ये रास्ता मेरे लिए अजनबी नहीं था, मगर रात के इस घड़ी धुंध में हर जानी पहचानी चीज भी अजनबी और खौफनाक दिखाई दे रही थी। दरख्तों के साए यूं लग रहे थे जैसे कोई देवा कामत मखलूक हाथ फैलाए खड़ी हो। हवा के सर्द थपेड़े मेरे चेहरे से टकरा रहे थे, मगर मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। बासित की रफ्तार मुसलसल बढ़ती जा रही थी और मुझे उसके पीछे रहने के लिए करीबन भागना पड़ रहा था। मेरे जहन में हजारों सवालात गर्दिश कर रहे थे। आखिर वो क्यों इस वीराने का रुख कर रहा है? क्या वो किसी से मिलने जा रहा है, या फिर वो किसी जहनी दबाव का शिकार होकर खुद कशी करने तो नहीं जा रहा? ये ख्याल आते ही मेरे कदमों में मजीद तेजी आ गई। करीबन आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो वहीं रुक गया जहाँ का मुझे शक था। शहर का वही कदीम और तारीखी कब्रिस्तान, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ आसेब का साया है। लोग दिन की रोशनी में भी वहाँ से गुजरने से इतराते थे,
कब्रिस्तान की चार दीवारें कई जगहों से टूटी हुई थी। लोहे का मरकजी दरवाजा जंग आलूद होकर एक तरफ झुका हुआ था। अंदर घनी झाड़ियां और कदीम दरख्तों के झंड सी हैबतनाक मंजर की तरह दिखाई दे रहे थे। बासित बिना रुके और दाएं बाएं देखे बगैर अंदर दाखिल हो गया। मैंने एक लम्हे के लिए गेट के पास वक़्फ़ किया। खौफ ने मेरे पैरों को जैसे जकड़ लिया था। कब्रिस्तान के अंदर से आने वाली हवा में एक अजीब सी बू थी जो गीली मट्टी और सूखे फूलों की मिली जुली बू जैसी थी, मगर सच जानने की तड़प और बासित की मोहब्बत मुझे अंदर खींच ले गई। मैं कांटेदार झाड़ियों की ओट में दुबती हुई उसके पीछे गई। कब्रिस्तान के अंदर हवा का आलम था और सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी तूफान जैसी लग रही थी। सूखे पत्तों पर मेरे कदमों की हल्की सी आवाज भी इसी धमाके जैसी महसूस होती थी, इसलिए मैं बहुत संभल कर कदम रख रही थी। कुछ दूर जाकर बासित रुक गया। ये कब्रिस्तान का सबसे पुराना और सबसे घना हिस्सा था, जहाँ कब्रें जमीन के बराबर हो चुकी थी और कुतबे टूट फूट कर बिखरे पड़े थे। आसमान पर बादलों की आमदो रफ्त जारी थी और कभी कभी चांद बादलों की ओट से झांकता। कब्रिस्तान में रोशनी की एक मध्यम सी लहर दौड़ जाती। मैंने एक पुराने और दिवो हेकल पीपल के दरख्त के तने के पीछे नाह ली और वहीं से बासित को देखने लगी। उसने इधर उधर देखा जैसे किसी चीज का यकीन कर रहा हो और फिर वो एक खास जगह पर जमीन पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से मट्टी खोदना शुरू कर दी। ये मंजर मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन था, क्योंकि उसके पास कोई औजार, कोई खुदाल या बेलचा नहीं था। वो पागलों की तरह अपने नंगे हाथों और नाखूनों से जमीन खुरेद रहा था। मट्टी शायद बारिश की वजह से नरम थी, लेकिन फिर भी हाथों से कब्र खोदना आसान काम नहीं था। उसकी हालत गैर हो रही थी। वो हाँप रहा था। उसके मुंह से अजीब सी गैर इंसानी आवाजें निकल रही थी, जैसे कोई जख्मी जानवर करा रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये मेरा बासित नहीं हो सकता था। बासित तो एक नफीस और सफाई पसंद इंसान था, जो अपने कपड़ों पर जरा सा दाग लगने पर भी बेचैन हो जाता था, और यहाँ वो कीचड़ और मट्टी में लथपथ किसी जनूनी की तरह जमीन खोद रहा था। उसके कपड़े मट्टी से अट चुके थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। वक्त जैसे थम सा गया था। मुझे नहीं मालूम कि मैं वहाँ कितनी देर खड़ी रही, शायद घंटा, शायद सदियां। वो मुसलसल खोदता रहा, यहाँ तक कि उसके हाथों से खून रसने लगा, मगर वो रुका नहीं। उसका जनून और वहशत बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सी हमदर्दी और दुख जागा कि मेरा शोर किस अजियत से गुजर रहा है। मैं चाहती थी कि दौड़ कर जाऊं तो उसे रोक लूं, उसे गले लगा लूं और पूछूं कि उसे क्या गम है, मगर खौफ की एक नामालूम दीवार मेरे और उसके दरमियान हाइल थी। मैं अपनी जगह से हिल न सकी और बुत बनी ये सारा तमाशा देखती रही। अचानक वो रुक गया। उसने गहरी सांस ली और कब्र के अंदर झुककर कुछ टटोलना शुरू किया, जैसे वो किसी चीज को तलाश कर रहा हो। उस लम्हे हवा भी थम गई। माहौल में एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया। फिर अचानक उसके मुंह से एक ऐसी दर्दनाक और दिल दिला देने वाली आवाज निकली। ना तो चीख थी और ना ही रोना, बल्कि दोनों का एक खौफनाक मिला। ये आवाज कब्रिस्तान की खामोशी को चीरती हुई मेरे दिल में पेवस्त हो गई। उस आवाज में इतना दर्द और कर्ब था कि मेरी आंखों से भी इख्तियार आंसू जारी हो गए। मुझसे अब मजीद जब्त ना हो सका। मैं अपनी छुपने की जगह से बाहर निकल आई और लरजती हुई आवाज में उसे पुकारा, बासित, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी आवाज सुनकर वो चौंका नहीं और ना ही उसने कोई खौफ ज़दा रद्द अमल ज़हर किया, जैसा कि आम तौर पर चोरी पकड़े जाने पर होता है, बल्कि उसने बहुत आहिस्ता से अपनी गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। अंधेरे के बावजूद मैं उसकी आंखों की चमक देख सकती थी, जो किसी उदास दरिंदे की मानद थी, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ या गुस्सा नहीं था, बल्कि
ایک گہری لاتعلق اور التجا تھی، کی آنکھیں ویران تھی اور چہرہ آنسوؤں اور مٹی سے آٹا ہوا تھا۔ اس نے قبر کے اندر اشارہ کرتے ہوئے انتہائی مدھم اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، دیکھو اسے دیکھو۔ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کیا دکھانا چاہتا ہے، کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میرے قدم منو وزنی ہو گئے تھے اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، مگر ایک انجانی مقناطیسی کشش مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قبر کے قریب پہنچی۔ قبر سے سرائنڈ کے وہ بقیے اٹھ رہی تھے جو انتہائی ناگوار اور متلی آور تھے۔ میں نے اپنی ناک چھال رکھ لی اور ہمت متجمع کر کے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر اندر جھانکا۔ اسی لمحے بادلوں سے چاند باہر نکل آیا، اس کی دو دھائیاں روشنی سیدھی قبر کے اندر پڑی۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دماغ چکرا گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ قبر کے اندر ایک لاش پڑی تھی جو شاید کئی دن پرانی تھی اور گلنا سڑنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کا لباس بوسیدہ ہو چکا تھا، چہرہ مٹی اور خون سے آٹا ہوا تھا، مگر وہ چہرہ ناقابل شناخت ہرگز نہیں تھا۔ وہ چوڑی پیشانی، وہ تیکھی ناک، وہ بند آنکھیں اور وہ ہونٹ جن پر اب موت کی ابدی مہر ثابت تھی، وہ کوئی اجنبی نہیں تھا۔ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ خود میرے شوہر باسط کی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میرا ذہن اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ اگر قبر میں پڑی یہ لاش باسط کی ہے، پھر وہ کون ہے جو میرے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہے اور جس کے ساتھ میں پچھلے ایک ہفتے سے رہ رہی ہوں؟ میں نے خوف زدہ ہو کر نظریں اٹھائیں اور اس شخص کی طرف دیکھا جو قبر کے کنارے بیٹھا، اپنے خون آلود ہاتھ اپنی گود میں رکھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کا چہرہ تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ باسط جیسا ضرور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب انسانی تاثرات ختم ہو رہے تھے اور ایک عجیب سی اسرار چمک ابھر رہی تھی۔ اس کی جلد جو پہلے زرد تھی اب مٹی کے رنگ جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، بس اس نے اپنی خالی اور بے نور آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اس کے لرزتے ہوئے نیلے ہونٹوں سے ایک ایسی بات نکلی جس نے میری روح تک کو فنا کر دیا۔ اس کی آواز اب باسط کی مانوس آواز نہیں تھی بلکہ کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی بھاری اور کھوکھلی باز گشت جس میں صدیوں کی تھکن اور التجا پوشیدہ تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے باہر نکالو، مجھے اس قید سے آزاد کرو۔ میں یہاں تنہا ہوں کیونکہ وہ چیز جو ایک ہفتے سے تمہارے گھر میں رہ رہی ہے۔ شخص کی آواز میں صدیوں کی ویرانی اور ایک ایسی بھیانک اجنبیت تھی کہ میرے وجود کا ریشہ ریشہ کانپ اٹھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ وہ چیز جو ایک ہفتے سے تمہارے گھر میں رہ رہی ہے وہ میں نہیں ہوں، میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ تو مجھے لگا کہ میرا سر کسی بھاری پتھر سے کچل دیا گیا ہے۔ قبرستان کی وہ خنک اور خاموش رات اچانک جہنم کی بھٹی کی طرح دہکنے لگی۔ حالانکہ وہاں شدید سردی تھی اور ہوا برف کی مانند تھی، مگر میرے وجود سے خوف کا گرم پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ قبر کے کنارے بیٹھا وہ شخص جو میرا شوہر ہونے کا دعوے دار تھا اب میری آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگا تھا۔ اس کے نقوش بگڑ رہے تھے اور اس کا چہرہ موم کی طرح پگھل رہا تھا، جیسے کوئی پلاسٹک کی گڑیا آگ کے قریب آنے پر اپنی شکل کھو دیتی ہے۔ جبکہ قبر میں پڑی ہوئی لاش کی بند آنکھیں جو صدیوں سے سوئی ہوئی لگ رہی تھی اچانک واہ ہو گئی اور ان میں سے ایک ایسی سبز اور زہریلی روشنی نکلی جس نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ روشنی میرے روح کو کھینچ رہی ہو۔ ہوا کا شور تیز ہو گیا تھا اور آندھی کے جھکڑے چلنے لگے تھے۔ قبرستان کے سوکھے اور سیاہ درخت کسی اسیب کی طرح جھوم رہے تھے۔ ان کی شاخوں سے عجیب و غریب چہکوں اور رونے کی ملی جلی آوازیں برآمد ہو رہی تھی جو انسانی سماعت پر گرا گزر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ زمین مجھے نکل لے گی یا میرا دل خوف کی شدت سے بند
बंद हो जाएगा। मैं वहाँ से भागना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आंखें बंद कर लूं और गायब हो जाऊं, मगर मेरा जिस्म मफलूज हो चुका था, जैसे किसी ने मेरे पैरों को जमीन में गाड़ दिया हो। वो पिघलता हुआ शख्स मेरी तरफ बढ़ा और उसने अपना लेसदार और हड्डियों का ढांचा नुमा हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मेरी मदद करो, मुझे इस मिट्टी के ढेर से निकालो, वरना वो तुम्हें भी ले जाएगा और तुम्हारा अंजाम उससे बदतर होगा। ये मंजर मेरी बर्दाश्त की आखिरी हदूद को पार कर चुका था। मेरे अंदर का जब्त टूट गया। मेरे हलक में उठी हुई चीख आखिरकार एक धमाके की सूरत में बाहर निकली। मैंने अपनी पूरी कुव्वत जमा करके एक फलक शफाफ चीख मारी, जिसकी गूंज मुझे अपने ही कानों में महसूस हुई। उस चीख के साथ ही वो खौफनाक मंजर किसी शीशे की दीवार की तरह कच्ची कच्ची होकर बिखर गया। मेरी आंख खुल गई। मैं झटके से अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। मेरे कपड़े गीले हो चुके थे और मेरी सांसें धोखनी की तरह चल रही थी, जैसे मैं मीलों का सफर तय करके आई हूँ, किसी दरिंदे से जान बचाकर भागी हूँ। मेरा दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था और उसकी धड़कनों की आवाज पूरे कमरे में गूंजती महसूस हो रही थी। मेरा हलक कांटों की तरह खुश्क हो चुका था और जबान तालू से चिपक रही थी। मैंने खौफ ज़दा और फटी हुई नजरों से इधर उधर देखा। मैं कब्रिस्तान में नहीं थी और ना ही वहाँ कोई खुली हुई कब्र या लाश थी। मैं अपने उसी पुराने और मनहूस ख्वाब गाह में थी, जहाँ रात का गहरा सकूत तारी था और 0 वाट का बल्ब अपनी मध्यम नीली रोशनी बखेर रहा था, जिससे कमरे की चीजें साए की तरह दिखाई दे रही थी। कमरे की खिड़की के पर्दे अपनी जगह साकित थे और बाहर गली से किसी आवारा कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि मैं जिंदा हूँ और ये दुनिया हकीकी है। मैंने अपने ठंडे जख हाथों से अपने चेहरे को छुआ और गहरी सांस लेकर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो सब महज एक डरावना और भयानक ख्वाब था। एक ऐसा ख्वाब जो शायद मेरी ज़हनी परेशानी और बासित के रवैये के बारे में हद से ज्यादा सोचने और वहम करने का नतीजा था। मेरे दिमाग ने ऐसा ऐसा हकीकत को कबूल करना शुरू कर दिया। मेरा शोर कोई भूत या हमजाद नहीं था और ना ही वो किसी कब्र में दफन था। वो तो बस कुछ दिनों से कारोबारी परेशानी का शिकार था और मैंने अपने शक की बुनियाद पर राई का पहाड़ बना लिया था। मुझे अपनी बेवकूफियों और कमजोरी पर हंसी आने लगी कि मैं कैसे ख्याली पुलाव पका कर खुद को अजियत दे रही थी और एक मोहब्बत करने वाले इंसान पर शक कर रही थी। कमरे में फैली हुई तो सुकून खामोशी ने मेरे तने हुए एहसाब को काफी हद तक पुरसुकून कर दिया था। दीवार पर लगी हमारी शादी की तस्वीर मध्यम रोशनी में भी मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी, जो मुझे याद दिला रही थी कि हमारा रिश्ता कितना मजबूत और सच्चा है। मैंने एक नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई अपनी चीजों पर डाली, जहाँ मेरी पसंदीदा पत्थर की शीशियाँ और बासत की दी हुई घड़ी रखी थी। ये छोटी छोटी मानूस चीजें मुझे जिंदगी की तरफ वापस ला रही थी। मैंने सोचा कि कल सुबह उठकर मैं सबसे पहले सदका दूंगी और अपने घर में एक अच्छी सी दावत का एहतमाम करूंगी, ताकि घर की फिजा बेहतर हो सके। अभी मैं अपनी उखड़ी हुई सांसें बहाल करने की कोशिश कर रही थी और खुद को मुलामत कर रही थी कि अचानक गुसल खाने के दरवाजे का हैंडल घूमा और दरवाजा हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया। मैं चूंकि पहले ही खौफ जदा थी, इसलिए जरा सहम कर पीछे हो गई और कंबल को अपने सीने तक खींच लिया, मगर सामने से निकलने वाला शख्स को देख कर मेरी जान में जान आई और मेरे चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वो बासित था। उसने रात के सोने वाले आरामदेह कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे पर तौलिया रगड़ते हुए वो इंतहाई इत्मीनान और सुकून से बाहर निकला। उसका हुलिया बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। कोई साफ सुथरा लिबास, कोई साबन के मनूस महक जो हमेशा उसके वजूद से आती थी, और चेहरे पर वही नरमी और अपनानियत जो मेरी पहचान थी। उसे जिंदा सलामत और अपने सामने चलता फिरता देखकर मेरे दिल से मनोवजनी बोझ उतर गया और मुझे अपनी आंखों पर यकीन आ गया। वो कब्रिस्तान
आसान वाला ख्वाब इतना लघु और बेबुनियाद था और ये हकीकत कितनी खूबसूरत थी। बासित ने मुझे बिस्तर पर बैठे हुए और हाँफते हुए देखा तो उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के गहरे आसार नमूदार हुए। वो तेजी से मेरे करीब आया और मेरे पास बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उसने अपना गर्म हाथ मेरे पेशानी पर रखा और इंतहाई नरम और मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, मेरी जान क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रही हो और तुम इतना पसीने में क्यों भीगी हुई हो? क्या तबीयत खराब है या कोई बुरा ख्वाब देखा है? उसका लफ्ज हकीकी और गर्म था। उसमें वो मुर्दों जैसी ठंडक हरगिज नहीं थी जो मैंने ख्वाब में महसूस की थी। उसके हाथ की गर्मी ने मेरे ठंडे जिस्म में हरारत भर दी। उसकी आवाज में वही मिठास और लूच था जिसके लिए मैं पिछले एक हफ्ते से तरस रही थी। मैंने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे मुझे यकीन न आ रहा हो कि वो वाकई मेरे पास है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैंने लरजती हुई आवाज में जवाब दिया, बासित, मैंने एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा था। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मुझे लगा कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो और मैं तुम्हें बचा नहीं पा रही। वो ख्वाब इतना सच्चा था कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने हो। बासित ने मुस्कुराते हुए मेरे बालों में उंगलियां फेरी और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने की धड़कन एक जिंदा इंसान की धड़कन थी, बाकायदा और पुरसकून। उसने दिलासा देते हुए कहा, पगली हो तुम भी, मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। भला मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? ये सब तुम्हारे वहम है। तुम शायद आजकल ज्यादा काम कर रही हो या थक रही हो, इसलिए ऐसे परेशान कुन ख्वाब आ रहे हैं। पुरसकून हो जाओ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अब कोई डरने की बात नहीं है। उसकी बातों ने मेरे दिल पर मरहम का काम किया। मेरे अंदर का खौफ दम तोड़ने लगा और एक अजीब सी मानियत और सुकून का एहसास जागा। मैंने सोचा कि मैं वाकई कितनी पागल हूँ, बिला वजह शक कर रही थी। बासित ने मजीद प्यार से मुझे समझाते हुए कहा, देखो कल इतवार है, हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। याद है तुम उस नए रेस्टोरेंट जाना चाहती थी? हम वहाँ जाएंगे और फिर तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी खाएंगे। उसकी ये आम घरेलू बातें मेरे लिए जिंदगी की उम्मीद थी। मैंने अपने ज़हन से तमाम वसवसे झटक दिए और सोचा कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना ख्याल रखने वाला शोहर मिला है जो मेरी जरा सी परेशानी पर इतना बेचैन हो जाता है। उसने मुझे याद दिलाया कि परसों मेरी अम्मी की सालगिरह है और हमें उनके लिए तोहफा भी लेना है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि मैं वाकई ये बात भूल चुकी थी। बासित का हाफजा कितना अच्छा था, वो छोटी छोटी खुशियों का कितना ख्याल रखता था। उसने मेरा माथा चूमा और कहा कि अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं सुबह तुम्हारे लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाऊंगा। तुम्हें किचन में जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करना। उसकी इन मोहब्बत भरी बातों ने मेरे दिल में मौजूद शक के आखिरी जर्रे को भी मिटा दिया था। मैंने दिल ही दिल में तौबा की कि मैंने इतने अच्छे इंसान के बारे में क्या कुछ नहीं सोचा। शायद काम के दबाव की वजह से वो कुछ दिन चुप रहा होगा, मगर उसका मतलब ये तो नहीं था कि वो बदल गया है। मैंने सुकून का एक गहरा सांस लिया और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। मुझे उसके लिबास से आती हुई सुकून खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी जो मेरे आसाब को पुरसकून कर रही थी। बासित ने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया जो साइड टेबल पर रखा था और कहा, लो पानी पियो और दोबारा सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैंने पानी का घूंट भरा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा गला वाकई बहुत खुश्क था। ठंडे पानी ने मेरे अंदर की जलन को खत्म कर दिया था। पानी पीने के बाद मैंने गिलास वापस रखा और लेटने के लिए तकिया दुरुस्त करने लगी। बासित भी मेरे बराबर में लेटने के लिए अपनी जगह बनाने लगा और उसने लाइट बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उस लम्हे मेरा जहन बिल्कुल खाली और पुरसुकून था और नींद का गलबा तारी हो रहा था। कमरे में मुकम्मल अमन था और कोई भी चीज गैर मामूली नहीं थी। सब कुछ वैसे ही था जैसे एक खुशगवार जिंदगी में होना चाहिए। मैंने कंबल ओढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया और करवट लेने लगी ताकि मैं सुकून की नींद सो सकूं। मेरी
नजर गैर इरादी तौर पर पलंग की निचली जानब फर्श पर पड़ी, जहाँ बासत ने अभी अभी आकर अपनी चप्पल उतारी थी और अपने जूते एक तरफ रखे थे। कमरे की मध्यम रोशनी में भी वो चीज इतनी नुमाया थी कि उसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। मेरी नजरें वहीं जम गई और मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। मेरा दिल जो अभी पुरसुकून हुआ था, अचानक फिर से बंद होने लगा। बासत के स्याह चमड़े के जूतों पर जो पलंग के पाए के पास पड़े थे, ताजा गीली सुर्ख मट्टी लगी हुई थी। ये आम मट्टी नहीं थी, ये वही लेसदार और चिकनी सुर्ख मट्टी थी जो मैंने अपने ख्वाब में कब्रिस्तान की जमीन पर देखी थी और जो शहर में कहीं और नहीं पाई जाती थी। मट्टी इतनी ताजा थी कि उसका एक लोथड़ा अभी अभी जूते से फिसल कर फर्श पर गिरा था और उससे उठने वाली मखसूस बू मेरे नथनों से गिराई। ये वही बू थी जो उस कब्रिस्तान की वीरानी में बसी हुई थी और जिसमें मौत की सराइंड शामिल थी। अगर वो अभी गुस्ल खाने से निकला था और सारा वक्त घर में था और हम इतनी देर से नॉर्मल बातें कर रहे थे, उसके जूतों पर ये ताजा कब्रिस्तान की मट्टी कहाँ से आई? वो अभी बाहर से आया है, मगर वो तो बाथरूम में था। मेरा जहन उलझ गया और दिमाग ने खतरे की घंटियां बजाना शुरू कर दी। इस सवाल ने मेरे दिमाग को मफलूज कर दिया। मैंने धीरे से नजर उठाकर बासत की तरफ देखा, जो अब बिस्तर पर लेट चुका था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं बिस्तर पत्थर की मूर्त बनी उसके जूतों पर लगी उस खूनी सुर्ख मट्टी को घूरती रही। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह की सबक अमवाज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल AQ स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।